Okay, so let's start the today's lecture. Okay, so today basically we are going to study about the some little concept of the Brillouin zone. Okay, so basically the thorough discussion we will see in the chapter band theory of solid. When we study the band theory of the solid, there we will discuss the thoroughly about the Brillouin zone and their applications. But today I'm just want to give you some basic definitions or basic introduction because there are some jam student also. Okay, so कभी कभी उनमें कुछ questions आ जाते हैं. All right, so let's start with some concept of Brillouin zone. But before the Brillouin zone, I want to discuss something else. So I want to first discuss the reciprocal lattice again because the discussion I want to make for that, the recap of reciprocal lattice is quite important. Okay, so it will take 2 minutes or 5 minutes. So just recap the reciprocal definitions only and we will go to our content. Okay, so Okay, sir. basically what we have studied that the reciprocal space is also known as what? K space. K space को बोलते हैं ना इसको, is also a K space. Okay, or it is a basically we can say it is a Fourier transform of the real space. Okay, the reciprocal, you can say reciprocal lattice actually. The reciprocal lattice is nothing but is a Fourier transform of real lattice or direct lattice, है ना, of real lattice. ये बात क्लियर है सबको? मैंने बताया था ना, it is a Fourier transform of the real lattice. Okay, and Yes, sir. I want to tell you, and this thing you will know, that a point in a reciprocal lattice represents a set of parallel planes in a direct lattice. ये भी हमने बात की थी. Okay, Yes, sir. that a point in a please write down everyone this definition. A point in a reciprocal lattice represent the set of parallel planes in the direct lattice. Like हमने बात किया था ना कि मान लो लेट सपोज दिस इज आवर पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस. ओके, सो हर एक डायरेक्ट लैटिस करस्पॉन्डिंग कुछ उसके प्लेन्स होंगे जिसको हमने मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट किया था. दैट प्लेन वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय द मिलर इंडिसेस एंड दैट प्लेन इज कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट्स इन द reciprocal space. Okay, so these were the some definition which we have made. But today what I want to discuss, there is a Sir, factor. Yes, sir, can you repeat last statement, the definition? I'm repeating again. A point in a reciprocal lattice represents a set of parallel planes in a direct lattice. Okay, direct lattice का जो parallel planes का set होगा वो reciprocal lattice में छोटे छोटे पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, सर ये पॉइंट समझ नहीं आया कि रेसिप्रोकल में पॉइंट से कैसे होगा. अरे ये प्लेन बना, लेट्स सपोज दिस इज आवर डायरेक्ट लैटिस. ओके, लेट्स सपोज दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन. हमने क्या किया था, इस प्लेन से एक डिस्टेंस ली थी ना, स्मॉल डी. भाई दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल डी थी. ठीक है ना. और रेसिप्रोकल स्पेस में हमने उसको क्या किया था, कुछ ऐसा फैक्टर लिया था जो कि हमारा 1/d के फॉर्म में आ जाए. ओके, बेसिकली दैट मींस द पॉइंट, द डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड टू द पॉइंट. जो हम रेसिप्रोकल स्पेस में जो हम पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, बेसिकली एक एक पॉइंट एक एक पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करता है. ये चीज मैंने बताई भी थी. ठीक है. ओके, ओके. सो इन अ डायरेक्ट लैटिस व्हाट वाज द ट्रांसलेशन वेक्टर, किसी को याद है ट्रांसलेशन वेक्टर क्या था डायरेक्ट लैटिस में? जब हमने ट्रांसलेशन वेक्टर डिस्कस किया था, याद है किसी को ट्रांसलेशन वेक्टर? व्हाट वाज द ट्रांसलेशन वेक्टर? C1 equals to A x cap
Basically, it was represented by T vector, right? And Yes, it sir. Yes, was sir. N1 A N1 A vector cap plus plus N2 P N2 vector. B vector plus N3 Yes, C sir. vector in the 3 dimension. यही था ना? Yes, sir. और हमने ये भी डिस्कस किया था, we also discussed that this translation vector represent which what? क्या represent करता है? Basically, it represent the connection between the two basis point. ठीक है ना? It basically represent the connection between the two basis point. दो basis point को जोड़ता ही तो था ना ये, जब हमने Yes, sir. लैटिस वेक्टर को डिफाइन किया था इन अ सेकंड क्लास. रिवाइज करना, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? आप देखना उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था. सो बेसिकली व्हाट द ट्रांसलेशन वेक्टर डू? ट्रांसलेशन वेक्टर just translate a lattice point to other lattice point. ठीक है ना? Translate a lattice point to other lattice point. In the same way, we are going to establish a vector that will be known as translation vector in the reciprocal space. Clear है? Basically, ये A star, A vector, B vector, C vector क्या है? They are the vectors in the direct lattice or real space. यही तो है ना? यही हमने डिस्कस किया था ना? In a similar way, we are going to introduce a vector which will be known as translation vector in the reciprocal space. And this translation vector in a reciprocal space, translational vector in reciprocal space. Okay? And this vector is represented by G vector, that is capital G vector. Clear hai? It is represented by capital G vector. And this is given as G vector is equals to H A star plus K B star plus L C star. देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन दोनों इक्वेशन से. Are you able to take the means any pattern or any common thing between these two lattice vectors? Sorry, translation lattice vectors. भाई ये दोनों ट्रांसलेशन वेक्टर्स ही तो है ना, ये रियल स्पेस में है, ये रेसिप्रोकल स्पेस में है. क्लियर? In the real space, the translation vector includes the lattice vector A vector, B vector, C vector, which is a lattice vector of the real space. Clear है? And n1, n2, n3 are the coefficient. This is basically a number. Clear? Now, as we move to the reciprocal space, the A, B, C, the real space lattice vector has been converted into what? Reciprocal lattice vector. भाई हमने A star, B star, C star निकाला था ना? For the simple Yes, cubic, sir. body centered cubic, face centered cubic, सबके लिए निकाला था. So there A star, B star, C star was representing what? They was representing the means reciprocal lattice vector. तो जो यहाँ पर डायरेक्ट लैटिस वेक्टर था और यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ गया. यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात आती है व्हाट इज HKL हियर? द HKL आर द मिलर इंडिसेस. अब आप लोग को सर ये मिलर इंडिसेस कहां से आ गया बीच में? जस्ट रीड द थर्ड स्टेटमेंट आई रोट टुडे. आज जो मैंने आपको तीसरा स्टेटमेंट बोलकर लिखाया है, आप उसको एक बार पढ़ो. Planes. A set of a point in the reciprocal lattice, a point in the reciprocal lattice represents a set of parallel planes in a direct lattice. भाई अगर ये पॉइंट किसी प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रियल लैटिस में, क्लियर है? अगर ये पॉइंट किसी प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रियल लैटिस में, तो रेसिप्रोकल लैटिस में ये उसके क्या हो जाएंगे? डॉट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाएंगे. और HKL तो यहाँ पर मिलर इंडिसेस के रूप में था ना, जो कि प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो जो प्लेन वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रियल लैटिस ने रेसिप्रोकल लैटिस को HKL के फॉर्म में दे दिया है यहाँ पे. क्लियर? क्लियर है? जस्ट रीड द थर्ड स्टेटमेंट अगेन. अगर किसी को डाउट है एक बार फिर से पढ़ो. ओके सर ये यस. हाँ हाँ वेक्टर जी है जो अपना, यस यस. क्या ये रेसिप्रोकल लैटिस में दो प्लेन्स के बीच में कनेक्शन बताएगा?
दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन, प्लेन्स तो है ही नहीं ना, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को हमने पॉइंट बोल दिया है भाई। हाँ आप सर। ओके, आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। यस, ये पार्ट क्लियर नहीं हो रहा मुझे हाँ हाँ, अरे कि मैं जैसे आपने वही तो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है ये चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना, मुझे पता है इसमें एफर्ट लगता है इस चीज को समझने में थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ ना। मैंने कहा when we were discussing the real lattice we take a translation vector like this n1 n2 n3 with their lattice vector a vector b vector and c vector। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप लोग रिस्पॉन्ड करो तभी मैं समझ पाऊंगा किसको हाँ समझ में आ सर रहा है कि नहीं। हाँ ऐसे रिस्पॉन्ड करो। translation- हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। आई सेड डायरेक्ट लैटिस से भाई हमें कुछ जरूरत थी, वी वन नीड समथिंग, ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस अ ट्रांसलेशनल वेक्टर इन द रेसिप्रोकल स्पेस एंड आई हैव दैट नेम द जी वेक्टर। मैंने उसको जी वेक्टर का नाम दे दिया और हमने इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया दैट इट इज एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। ओके, अब बात आती है, रुको मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर आप क्वेश्चन पूछना, फिर डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। बात दो पॉइंट पे आती है कि n1 n2 n3 एच के एल में कैसे कन्वर्ट हो गया। नंबर वन, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू द ए स्टार बी स्टार एंड सी स्टार। यही तो पॉइंट है ना, हाँ ना में बताओ, Yes, sir. यही तो डाउट होंगे ऑब्वियसली। हाँ सर। हाँ Yes, sir. Yes, sir. ओके, पहले डाउट पे आते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे वर रिप्रेजेंटिंग द रियल लैटिस वेक्टर इन अ डायरेक्ट लैटिस, और इससे हमने ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैसे बनाया था ये सबको पता है, यस नो? Yes, sir. Yes, इसमें sir. किसी को डाउट है कि ए से ए स्टार कैसे हो गया, बी से बी स्टार कैसे हो गया, सी से सी स्टार कैसे हो गया? ये क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes, sir. Yes. Now, the main question arise that how the N1, N2, N3 converted into the HKL. Okay. So, while defining this thing, I have means make you write down. मैंने आपको एक लिखाया है एक statement that a point in a reciprocal space or reciprocal lattice represents a set of parallel plane in a डायरेक्ट लैटिस। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई डायरेक्ट लैटिस था, ठीक है ना, ये हमारा कोई डायरेक्ट लैटिस था और हमको पता है वी नो दैट देयर इज एवरी लैटिस पॉइंट कनेक्ट सम प्लेन्स, हर एक पे कोई ना कोई प्लेन्स कनेक्ट होता था ना। अब यहाँ पर प्लेन्स थ्री डायमेंशन में नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग विद द लाइन हियर। लेट्स सपोज देयर इज एनी प्लेन, देयर इज वन मोर प्लेन, देयर इज अ वन मोर प्लेन, ओके। इन द रियल लैटिस की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल लैटिस फर्स्ट। इन अ रियल लैटिस हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस प्लेन, इस प्लेन को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? एचके HKL से। मिलर इंडिसेस से किया था, एचकेएल से किया था। किसी को इसमें कोई डाउट है? हमने इसको एचकेएल से रिप्रेजेंट किया था। अब बात आती है हमने इसका ले लिया फोरियर ट्रांसफॉर्म, जितने प्लेन्स थे, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। भाई फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने क्या बताया था, तो इनके प्लेन के बीच की डिस्टेंस है दैट इज डी, जो प्लेन्स क्लोज हो जा रहे थे जिसमें हम देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। क्लियर है? So that planes now, while after the Fourier transform, this complete plane has been converted into the point. ठीक है? Now the complete plane has been converted into the point in a reciprocal space. Hello. Yes? Satya. Any question? Okay, किसी का माइक ऑन था, ठीक है ना, माइक वाइक ऑफ करके रखो, ठीक है। So the planes in the real space, I have did that Fourier transform and this plane is converted into the point, and this statement, ये स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, ये स्टेटमेंट लिखा है ना, पढ़ो। अ पॉइंट इन अ रेसिप्रोकल लैटिस, अ पॉइंट इन अ रेसिप्रोकल लैटिस रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स दैट वर डिफाइंड इन द रियल लैटिस। तो Yes, अगर sir. रियल लैटिस में हमने इस प्लेन्स को एचकेएल से डिफाइन किया है, तो वही एचकेएल से तो हम इसको डिफाइन करेंगे ना, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने मिलर इंडिसेस से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एचकेएल हैज बीन कम हियर।
क्लियर है? Sir, यस। sir, सर a point in a reciprocal lattice represents set of parallel planes in the real lattice, यस right? यस। So, sir, a point represents a set of parallel planes. Set of parallel planes मतलब अरे बहुत सेट ऑफ सारे पैरेलल प्लेन। प्लेन्स का मतलब ये हो गया, देखो लेट सपोज ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे रेसिप्रोकल स्पेस में, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं रेसिप्रोकल स्पेस में, ठीक है ना? इनका जो एक एक पॉइंट है ना वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका जो एक एक पॉइंट है दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये है इसका मतलब। ओके देखो, आई नो आई अंडरस्टैंड थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, बट टेक इट एज इट इज, ठीक है ना? ये जैसा है इसको ऐसे एक्सेप्ट करो, बिकॉज मैं समझ रहा हूं पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में जाने पे दुनिया बदल जाती है भाई। जो चीजें बड़ी बड़ी दिख रही थी सब छोटी छोटी हो गई, जो छोटी छोटी थी सब बड़ी हो गई। द वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड। आई अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, बट दिस इज अ फैक्ट एंड एक्सेप्टेड। ओके दैट द Sir, प्लेन्स ये व्हिच वर इन set रियल लैटिस इज द पॉइंट। हाँ बोलो। the set of planes means more than one planes. Set of parallel planes means for which we have defined the Miller indices। भाई मिलर इंडिसेस में जो हमने 0 1 0 0 1 बोला, लेट सपोज, देन 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 बार Oh, 0 0 2 बार, they तो all ये are the set of point parallel planes। oh, okay sir, okay. they all are the set of parallel planes। अरे एक बार आप लोग रिवाइज कर देखो, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर रहे हो। आप लोग पूछ रहे हो पैरेलल प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है ना? डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया था, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, अच्छे से समझाया भी था। प्लीज रिवाइज करो आप लोग, ठीक है? रिवीजन करते चलो। अगर आप हमसे ये क्वेश्चन आज पूछ रहे हो ना दैट व्हाट आर द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, तो ये बहुत ही मतलब सही चीज नहीं है, ठीक है ना? ये चीज हमने डिस्कस किया था ना, दैट 0 0 1, ओके, 0 0 2, 0 0 3, 0 0 1 बार, 0 0 2 बार, दे ऑल विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये डिस्कस किया था ना हमने। और यही और इन्हीं के बीच की सेपरेशन तो स्मॉल डी थी भाई। इन्हीं के बीच में जो हमने इंटरप्लेनर सेपरेशन निकाला था, इन्हीं के बीच में तो निकाला था। सर यस। सर जब हमने रेसिप्रोकल लैटिस शुरू किया था तब आपने वो एग्जांपल लिया था कि अलग अलग प्लेन लिया था 0 2 0 0 4 0 0 1 0। अरे ये वो सब मैंने तो एग्जाम्पल इसलिए लिया था ना ना मतलब। ना तो हाँ मैं कह हाँ रहा हूँ हाँ सर, तो ये सब पैरेलल प्लेन है राइट। हाँ। हाँ, तो ये सारा प्लेन मिलके एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पॉइंट ये सारा प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पैरेलल प्लेन्स होंगे, जितने भी मिलर इंडिसेस होंगे, वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा रेसिप्रोकल लैटिस में, ठीक है? ओके सो वी हैव डिफाइंड अवर जी वेक्टर दैट इज अ रेसिप्रोकल सर लैटिस फिर वेक्टर। हाँ क्वेश्चन ये था कि हमने रेसिप्रोकल लैटिस में इसलिए है कि डिस्टेंस जो पैरेलल प्लेन्स है, ठीक है, उनमें का जैसे पास पास आ रहे हैं वैसे डिस्टेंस उनका बहुत कम कम हो रहा है राइट। हाँ फिर अगर एक ही पॉइंट अगर सारा सेट ऑफ प्लेन डिस्कस मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है, तो फिर एक डिस्टेंस का डिस्कशन कैसे आएगा। बता रहा हूँ, डिस्टेंस को ही डिराइव करने जा रहा हूँ जी के टर्म्स में। अभी देखना कैसे आ रहा है, सारा सारा कंफ्यूजन वहां क्लियर हो जाएगा। बस मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो। इंटरप्लेनर सेपरेशन को जी के टर्म्स में डिफाइन करने जा रहा हूँ, वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है? लेट्स वेट। देखो डेरिवेशन ही Sir, करते जा रहा। हाँ one plane 0 0 1. This represents a point in reciprocal lattice. यस हाँ यही बात है। ओके Yes. देखो जो नेट के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ये पूरा डिस्कशन बैंड थ्योरी में फिर से करने वाले हैं बिल्वन जोन का, ठीक है ना? सो रेसिप्रोकल लैटिस में, रेसिप्रोकल में, के स्पेस में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो, वहां मिलकर सोचेंगे एक बार फिर से जब उसका हम थॉरो डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फॉर द जैम स्टूडेंट्स मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए बिल्वन यहाँ तक जो पढ़ाया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी कभी कभी आया है आपके एग्जाम में, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्वन जोन, 1 या 2 बार आया है। इसीलिए मैंने आज की क्लास इंट्रोड्यूस की है, वरना खत्म था आज। क्योंकि भाई नेट के स्टूडेंट्स को तो मैं बैंड थ्योरी में बिल्वन जोन पढ़ाने ही वाला था फिर से, ठीक है ना? चलो उसको हटाओ। अब बात करते Okay, हैं, sir. जैसा कि आपने बात किया जी और डी में क्या रिलेशन है।
आपका कंफ्यूजन ये था ना, देखो जी वेक्टर को जैसे हमने कहा वी हैव डिफाइंड एज एच ए स्टार के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ठीक है ना, एच ए स्टार के बी स्टार प्लस एल सी स्टार। इफ यू टॉक अबाउट द क्यूबिक लैटिस, देखो इन और इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, देखो हम यहाँ पर ना वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, बट द रिजल्ट विच वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ सिंपल क्यूबिक इट विल बी द मींस एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडीशन, ठीक है ना। हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल क्यूबिक का यूज करके, इससे जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा दैट विल बी एप्लीकेबल और all the lattice, means all the condition, not lattice, all the condition. Okay, so tell me what are the reciprocal lattice vector which you got in the simple cubic? क्या मिला था? Sir, U hat equal to A I cap. अरे सर ये मिला था, Oh, reciprocal lattice vector की बात कर रहा हूँ। sorry, sir. Okay, what was the B star? So 2 pi by 2 A pi J by cap. A J Pi by cap. A J cap. J cap. And what was the C star? 2 pi by pi A by K K cap. cap. K cap. 2 pi by A K cap. ये था, Yes, sir. यही था। Okay, now do one thing. Just put the A star, B star and C star value in a G. आप A स्टार, B स्टार और C स्टार की वैल्यू इस G वेक्टर में रखो, बिकॉज इट्स कंटेनिंग द A स्टार, B स्टार, C स्टार। जस्ट पुट द वैल्यू इन द G स्टार, लेट्स सी व्हाट हैपन। G वेक्टर इज व्हाट? H टाइम्स 2 pi by I cap, okay, K times 2 pi by A J cap plus L 2 pi by A K cap। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को? एनीवन? No, sir. ओके, जस्ट टेक अ 2 pi by A कॉमन, 2 pi by A को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? H I cap K J cap एंड L K cap, यही होगा। Yes, sir. ओके, टेक द मॉड ऑफ द G वेक्टर, G वेक्टर का मॉड लो। व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन वी टेक द मॉडुलस ऑफ G? क्या आएगा? 2 pi by A तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? Square root, sir. अंडर रूट H H square स्क्वायर Plus K square A plus square L plus A square. प्लस L स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. ओके, नाउ डू वन थिंग, इसको हटा दूं, देखो आने वाला है रिलेशन। मॉड ऑफ G इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आओ, 2 पाई अपॉन A अपॉन रूट अंडर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या है? Interplanar separation. हो गया Yes, इनवर्स sir. रिलेशन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट मींस जो G है हमारा, दैट इज ऑब्वियसली इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉल d। आप लोग का आई होप अब तो डाउट क्लियर हो ही गया होगा, नहीं हुआ? 2 पाई बाई d, Yes, sir. Yes. इट इज अ 2 पाई बाई। 2 pi by D. अब बताओ, जो वहां पे पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या यहाँ पे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है? भाई इनवर्स रिलेशन है, जो इधर आएगा जस्ट उल्टा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। हो गया ना इनवर्स रिलेशन G में और D में? Yes, sir. ओके, सो आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ इसमें कि भाई प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल लैटिस की जैसे ही बात होती है, स्पेस की जैसे ही बात होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात होती है, चीजें चेंज होती। हाँ, कोई डाउट है? Okay. So now, before come to the brilliant zone, I want to discuss one more little point. One more little point, that the X-ray diffraction in the reciprocal space. Okay, X-ray diffraction in the reciprocal space. भाई रियल स्पेस में हमने पढ़ लिया है ना? We have studied in a real space. X-ray Yes, sir. diffraction को Yes, real sir. space में पढ़ लिया है. Okay. Now put the heading X-ray diffraction in
रेसिप्रोकल स्पेस और रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये बहुत ही मतलब मैथमेटिकल चीज है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, कुछ ज्यादा फिजिक्स जैसी चीज थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। लेट सपोज आई एम डिनोटिंग अ पॉइंट हियर एंड दे आर द लैटिस पॉइंट इन द रेसिप्रोकल स्पेस। ठीक है, दे आर द रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके, नाउ पॉइंट कहां से आ रहा है? ऑलराइट, सी व्हाट विल हैपन हियर, लेट्स सपोज देयर इज अ रे इंसिडेंट ऑन वन पॉइंट। ओके, और यही तो होता था ना, रे को इंसिडेंट कराते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, XRD in a reciprocal space, in reciprocal space। यहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, एक बार जेस्ट में ही सिर्फ क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। ओनली वंस द जेस्ट एग्जाम द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ओके, लेट्स सपोज देयर इज अ रे इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट। ओके, एंड लेट्स सपोज द वेव वेक्टर ऑफ दिस वेव इज k वेक्टर। हम रेसिप्रोकल स्पेस में जा चुके हैं, यहां पर जो भी बात होगी k के टर्म्स में होगी। क्लियर है? We have the wave vector of the incident wave as k vector, right? Okay, ध्यान से देखना। Okay, this angle is theta, ये तो थीटा बनाता था। Okay, if I say if the ray will not reflect, अगर ray reflect नहीं होती है, if the ray will not reflect then this ray will come like this, ऐसे ही चली आएगी। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है ना, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, इज अ स्ट्रेट रे, ऐसे ही चली आएगी। ऑब्वियसली दिस ट्रांसमिटेड रे विल बी आल्सो व्हाट, k वेक्टर। इसका भी वेव वेक्टर कितना होगा, k वेक्टर होगा। बट द रे आफ्टर हिटिंग एट दिस पॉइंट डिफ्रैक्टेड, ये डिफ्रैक्ट हो जाती है। एंड लेट्स सपोज द रिफ्लेक्टेड वेव और डिफ्रैक्टेड वेव हैज द वेव वेक्टर एज k dash, has the wave vector as k dash, and obviously this angle will also be theta। यहां तक कोई बात, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये तो हमने जो किया है वही हम कर रहे हैं। ओके, नाउ बाय द इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन, ध्यान से सुनना, इवॉल्व्ड देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनके दिमाग में ही ये चीज आई थी कि क्यों ना एक बार एक्सरे डिफ्रैक्शन को रेसिप्रोकल स्पेस में किया जाए। उन्होंने अप्लाई किया, उनका कुछ ज्योमेट्री है, कुछ डेरिवेशन है, वी डोंट नीड टू गो इन द डेरिवेशन, ठीक है ना, हम उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं उसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, बट आई विल सेंड इन द ग्रुप, आप देख लेना उसका डेरिवेशन। इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी जगह पे मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा, दैट वी विल डिराइव द रियल स्पेस एक्सरे डिफ्रैक्शन इक्वेशन फ्रॉम रेसिप्रोकल स्पेस। ओके, अभी देखना। सो द आफ्टर द इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन, देखो सुनते जाओ, आफ्टर द इवॉल्व्ड कंस्ट्रक्शन दे गेव अ रिलेशन between the k dash and one more factor, what, that is g। okay, all right, our own discussion, what we know that the direction of g वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस पे कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ओके, g वेक्टर क्या है हमारा, ट्रांसलेशन वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस, Yes, इट sir. विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन, इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, मैं इसका डेरिवेशन आपको भेज दूंगा, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। So after the evolved construction, we got a relation, हमें एक रिलेशन मिला, and the relation was, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्या आया। The relation was delta k is equal to g, delta k is equal to g, okay, star।
मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूं कि ये आया कहां से है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूं। जब डेरिवेशन हुआ, व्हेन द डेरिवेशन took place, there was a term e to the power iota डेल्टा k माइनस g, और भी सारे कोफिशिएंट थे। वहां पर उन्होंने ये सपोज किया कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस फैक्टर शुड बी जीरो। दैट मीन्स द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो। भाई जब तक फेज डिफरेंस होता है अभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। दैट मीन्स द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो। तो जब इन्होंने इस पोर्शन को जीरो किया, दैट कम्स आउट टू द this relation, that is delta k equal to g. We know exact, see, we don't need to go in that description or derivation. मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ आप वो एक बार सुनते चलो, right? So we got the expression delta k equal to g, that is difference between the two wave vector. Two wave vector means wave vector k dash and minus k. जो reflected wave का हमारा wave vector है minus the incident wave vector, that is k dash minus k. Okay, so we can write here as k dash minus k is equal to g. Clear hai? Now do one thing, send this minus k to this side and this will be k dash is equal to g plus k. ठीक है, this k dash will be equal to g plus k. Actually this will be the vector. Okay, this all will be the vector. This will be the vector, this all this will be the vector. Vectors है ना सारे, ये सब vector होगा. Okay, now do one thing, take a square on the both side. दोनों तरफ स्क्वायर ले लो. स्क्वायर लोगे तो क्या होगा? It will be k dash square plus g square plus k square plus 2g dot k. यही होगा क्या? यही आएगा स्क्वायर लेने के बाद दोनों तरफ? Yes, sir. Okay, what basically we are doing, we are taking a squaring on the both side. लिख लेना साइड में, squaring both side. इस इक्वेशन को ध्यान में रखो, that is k dash square is equal to g square plus k square plus 2g vector dot k vector. Now we are going to take an assumption. यहां पर हम एक assumption लेने जा रहे हैं and the assumption is ये जो हिट करने के बाद डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और बेसिकली यू कैन से जो स्कैटरिंग हो रही है रे की, वी आर टेकिंग दिस एज एन इलास्टिक स्कैटरिंग. ओके, ये अज्यूम किया गया कि ये जो स्कैटरिंग है रे की, ये कैसे स्कैटरिंग है? इलास्टिक स्कैटरिंग है. और इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है? इन द इलास्टिक स्कैटरिंग देयर विल बी द नो लॉस इन द वेवलेंथ, नो लॉस इन द फ्रीक्वेंसी. हेंस वी कैन से that mod of k dash should be equal to mod of k. क्या हम ये कह सकते हैं? The magnitude, mod means what? Magnitude. The magnitude of the k dash vector, that means this vector, reflected wave vector, should be equal to the incident wave vector. भाई जो एनर्जी के साथ आया है वही निकल गया, ऐसा अज्यूम करते हैं. आइडियल तो नहीं होता है, बट वी हैव अज्यूम्ड दिस. Okay, so if we are taking these two, their magnitude are equal. Can you say that this k dash will be equal to k? Yes, sir. Okay, so this equation will become k square is equal to z square plus k square plus 2g dot k. And this k square will be cancel out. Hence, you will get a relation. I'm writing down here, you will get a relation, and the relation is, wait, g square plus 2 times g dot k equal to 0. हाँ बताओ. सॉरी सर, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था. यहाँ पे आपने k डैश की वैल्यू k कैसे लिखी? हाँ, ओके. यहाँ पर k डैश की वैल्यू k के इक्वल ऐसे ली गई है that we are taking an assumption that the wave vector which is incident and the wave vector which got scattered, okay, the type of scattering is elastic scattering.
ये हमने एजम्पशन लिया है कि पढ़ने के बाद जो रे स्कैटर्ड कर रही है, ये इस तरह ये जो स्कैटरिंग हो रही है, वो स्कैटरिंग कैसी है? द स्कैटरिंग इज इलास्टिक स्कैटरिंग, एंड इन द इलास्टिक स्कैटरिंग there will be no loss of wavelength or frequency, hence the magnitude of the incident wave vector and reflected wave vector should be equal. Okay, तो हमने इस assumption को जब लिया, then the k square has been cancelled out, और हमें ये relation मिला, that is g square plus 2g vector dot k vector is equal to 0. And this equation is called Bragg's equation in a reciprocal lattice. Write down on your notebook. This equation is called Bragg's equation in a reciprocal lattice. Bragg's equation in reciprocal lattice, or it is also called the Bragg's equation in vector form. Okay, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, Bragg's equation in reciprocal lattice and Bragg's equation in vector form. Bragg's equation in reciprocal lattice. सर Yes. सर जी परपेंडिकुलर क्यों होगा वो समझ नहीं आया। G परपेंडिकुलर क्यों होगा? भाई G क्या डिनोट कर रहा है? इनवर्स ऑफ D, हाँ ठीक है ना? रियल स्पेस जब हमने डिस्कस किया था, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द रेसिप्रोकल स्पेस, भाई लेट सपोज दिस इज D, ये डिस्टेंस दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस थी D, ठीक है ना? अगर कोई फैक्टर इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में मिल रहा है, कोई फैक्टर अगर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में मिल रहा है, तुम सोच के देखो, एंड दिस प्लेन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द पॉइंट, देन दैट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर दिस पॉइंट और नॉट? ओके, ये इसी वजह से यहाँ पर परपेंडिकुलर के रूप में मिल रहा है। ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली, ये टेढ़ा नहीं है, किसी एंगल पे नहीं, इट इज अ परपेंडिकुलर। ये रिलेशन में डिराइव किया था ना, मॉड जी इक्वल टू 1/d, ये वहां से आता है। ओके, ये वहां से आता है। ओके, सो देखो जेस्ट एग्जाम में एक बार इसके क्वेश्चन पूछा गया है, दैट ब्रैग्स इक्वेशन इन अ रेसिप्रोकल लैटिस और इन अ वेक्टर फॉर्म, तो इसीलिए मैंने पूरा डिस्कशन किया है। मे बी आ सकता है, बट आएगा भी ना, इफ दिस क्वेश्चन केम देन इट विल कम फ्रॉम दिस ओनली दिस वेक्टर फॉर्म, दैट्स इट। ओके, अब बात आती है कि सर हमने इसको कैसे कह दिया कि दिस इज अ ब्रैग्स इक्वेशन इन रेसिप्रोकल लैटिस? कुछ तो प्रूफ दीजिए भाई, कुछ तो प्रूफ दीजिए। ठीक है, हमने डेरिवेशन तो नहीं किया है, बट व्हाट वी विल डू, we will derive the Bragg's equation of the real lattice, what 2d sin theta equal to lambda from this equation। ये तो हम कर ही सकते हैं ना भाई, अगर यहां से वो बन गया दैट मीन्स ये सही है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। सी, देखना, okay, just write down this equation again. This equation is g square plus 2g dot k is equal to 0, यही है। It's a dot product actually. Can we write as g square plus 2g k cos of theta? भाई लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ab cos theta। यस सर। What will, let's suppose this is theta dash, इसको theta dash बोल दो। What is the value of theta dash? theta dash की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा? Basically theta dash is what? Theta dash is the angle between g and k, g और k वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है। This is the angle between g vector and k vector. What will be the angle? एंगल कितना होगा? 90 minus 90 minus theta. 90 minus theta। जीरो सर। परपेंडिकुलर होगा ना सर? अरे सर, k डैश से नहीं पूछ रहा हूं, k से पूछ रहा हूं भाई, g और k के बीच में है ना, क्या ये एंगल नहीं होगा पूरा? भाई k जो आ रहा है वही तो इधर ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो क्या होगा ये पूरा एंगल? एक्चुअली ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा। अरे यहां से 90 डिग्री बना लिया, थीटा ये इधर से बना लिया, ये थीटा ये थीटा ये थीटा, बताया था ना ब्रैग्स इक्वेशन में, एंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। ओके, सो दिस थीटा विल बी, दैट इज द एंगल बिटवीन g वेक्टर एंड k वेव वेक्टर विल बी
90 plus theta. So 2 kg or gk is cos 90 plus theta. What is the value of cos 90 plus theta? Cos 90 plus theta कितना होता है? माइनस साइन Minus sin theta. Okay. So it will give the minus sin theta. Go to the right hand side. This relation will become g square is equals to 2 k g sin theta. क्या ये यही बनेगा? Clear है? g will be cancel out. So it will become g is equals to 2k sin theta. Clear? Now g और d में अभी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था. Okay. जी इक्वल्स टू 1 बाय Yes, sir. G was what? 2 pi by 2 d. pi upon 2 1 by 2 pi by d. 2 pi by d? upon Yes, G, sir. G was 2 pi by d. Just write down there. 2 pi by d. And what is the value of k here? 2 pi by lambda. Yes, sir. And it is sin theta. लो आ गया. 2 pi cancel out. D को उधर भेज दो, lambda को इधर ले आओ. 2d sin theta is equal to lambda. Derive हो गया. 2d sin theta is equal to lambda. कोई डेरिवेशन पूछ दे, यही बता देना. क्लियर है? Yes, sir. अब डाउट क्लियर है कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है? एक बार रिवीजन करना है इसका जाके. ठीक है ना? Okay, sir. हमने इस इक्वेशन से फाइनली दिस इज अ ब्रैग्स इक्वेशन इन अ रेसिप्रोकल लैटिस एंड दिस इज अ ब्रैग्स इक्वेशन इन रियल लैटिस. ठीक है ना? यस सर. Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. ओके, इट्स टाइम. 6:30 से क्लास है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. यस सर. चलो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है बिल्विन जोन का. अच्छा, फॉर द जैम स्टूडेंट आई वांट टू टेल कि अभी आपकी क्लास ओवर नहीं हुई है. ठीक है ना? बॉन्डिंग इन सॉलिड इज आल्सो कम इनटू द जैम एग्जाम. सो इसके बाद हम जो बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको अटेंड करना है. ठीक है? ओके सर. Okay, sir. Okay, so Okay, sir. from tomorrow class, first I will discuss the concept of Brillouin zone, then we'll move to the bonding in solid. Basically, the crystallography has been over. Okay? Okay, sir. Okay. See you guys. Thank you, sir. Thank you, you, sir. ओके थैंक यू सर. Thank you, Thank sir. you. Thank थैंक you. यू सर.